Hello friends, this is fourth lecture of the complex number. In the previous lecture we discussed about De Moivre's theorem and its example. Now today we start working rule to find out the roots of the complex number. De Moivre's theorem is also used to find all roots of the complex number. As we know, sine and cosine function are periodic function, that is cos 2k pi plus theta equal to cos theta and sin 2k pi plus theta equal to sin theta for all k belongs to z. यहाँ पे cos फंक्शन एंड sin फंक्शन बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन, सो यहाँ पे हम cos थीटा की जगह cos 2k पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं एंड sin थीटा की जगह sin 2k पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं. सो बाय De Moivre's theorem the polar form of the complex number cos theta plus I sin theta raised to 1 upon n means find out the nth root of the complex number. So equal to replace cos theta as a cos 2k pi plus theta and sin theta as a sin 2k pi plus theta. So we get cos 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta raised to 1 upon n. So equal to using by De Moivre's theorem cos 2k pi plus theta upon n plus I sin 2k pi plus theta upon n where k equal to 0, 1, 2 up to n minus 1. यहाँ पे हम k की डिफरेंट वैल्यू लेंगे 0, 1, 2 up to n minus 1. So we get different root of the complex number. If we put k equal to 0, so we get x1, k equal to 1, so we get x2, k equal to 2, we get x3, up to so on, k equal to n minus 1, so we get xn. So here x1, x2 up to xn are the roots of the complex number. So this is the procedure to find out the roots of the complex number. First step, if the complex number in the Cartesian form, तो convert in polar form. So first find out r and theta. उसके बाद जो एंगल है थीटा उसमें आप क्या करोगे 2k पाई प्लस ऐड करेंगे, थीटा की जगह 2k पाई प्लस थीटा लिखेंगे. उसके बाद हम De Moivre's theorem अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर k की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो हमें डिफरेंट रूट मिलेंगे. ये हम प्रोसीजर देख लिए. अब उसके हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ द यूनिटी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. यूनिटी का मतलब होगा 1 और उसका फोर्थ रूट. लेट z इक्वल टू 1 रेज़ टू 1/4. सो यहाँ पे 1 अपॉन n की जगह यहाँ पे 1/4 है. सो n की वैल्यू होगी 4. यहाँ पे जो 1 है वो रियल नंबर ही है. सो वी नो दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो फर्स्ट राइट डाउन इन x प्लस i बाई फॉर्म. सो 1 प्लस i इंटू 0 रेज़ टू 1/4. ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया. अब कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में. हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें r एंड थीटा फाइंड करना है. सो यहाँ पे x प्लस आई वाई है तो उसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0. वी नो डेट r इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x एंड y. सो वी गेट स्क्वायर रूट 1 प्लस 0, सो इक्वल टू 1. सो फाइनली r इक्वल टू 1 and theta equal to tan inverse y by x because x is positive and y is also positive. So substitute y and x. So tan inverse y is 0 and x equal to 1. So we get tan inverse 0, but tan inverse 0 equal to 0. So finally theta equal to 0. So the polar form z equal to r raised to 1/4 cos theta plus I sin theta raised to 1/4. r की जगह 1, थीटा की जगह 0. सो वी गेट r रेज टू 1/4 cos 0 plus I sin 0 raised to 1/4. 1 raised to 1/4 it means 1. Add in angle 2k pi. So we get cos 0 plus 2k pi and sin 0 plus 2k pi.
because cos and sin are periodic function. So cos 0 equal to cos 0 plus 2k pi and sin 0 equal to sin 0 plus 2k pi. Apply De Moivre's theorem. So we get cos 2k pi upon 4 plus I sin 2k pi upon 4. So finally we get cos k pi by 2 plus I sin k pi by 2. Here n equal to 4. So finally get k equal to 0, 1, 2 and 3. Because n minus 1 k की वैल्यू लेनी है हमें. The roots are, first case k equal to 0 in equation 1. So we get, मैंने सिम्बॉलिकल यहाँ पे z0 लिखा है, आप z1 भी लिख सकते हो. सो यहाँ पे z0 इक्वल टू k की जगह 0 रखोगे तो एंगल 0 हो जाएगा, साइन में भी 0 एंगल हो जाएगा. सो cos 0 प्लस आई साइन 0. पुट k इक्वल टू 1, z1 इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2. रिप्लेस किया है जब 1. सिमिलर k इक्वल टू 2. सो z2 इक्वल टू cos पाई प्लस आई साइन पाई. Similar, put k equal to 3, so we get z3 equal to cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. So here we get 4 roots, z0, z1, z2 and z3. I hope आपको समझ में आया होगा. So now example number 2, find all roots of equation minus 1 raised to 1 by 5, otherwise find all value of minus 1 raised to 1 by 5. ये आप होमवर्क में कर लेना. Example number 3, find all roots of 1 plus I raised to 1 by 3. So first write down z equal to 1 plus I raised to 1 by 3. So here x equal to 1 and y equal to 1. Convert in polar form. So first find out r and theta. R equal to square root x square plus y square. So square root 1 plus 1. So square root 2. Square root 2 equal to आप लिख सकते हो 2 raised to 1 by 2. So r की वैल्यू मिल गई. Next theta, x and y both are positive. So theta equal to tan inverse y by x. So tan inverse 1 and tan inverse 1 we get the value pi by 4. Here n equal to 3 है, क्योंकि 1 by 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी 3. सो यहाँ पे जो k की वैल्यू लेंगे हम 0, 1 एंड 2 लेंगे. सबसे पहले पोलर फॉर्म लिखते हैं. तो पोलर फॉर्म z इक्वल टू r रेज टू 1 by 3 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1 by 3, क्योंकि यहाँ पे 1 by 3 पावर है. सो वैल्यू r इक्वल टू 2 रेज टू 1 by 2. सो राइट डाउन 2 रेज टू 1 by 2 रेज टू 1/3. एंगल थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. सो cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 रेज टू 1/3. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो एंगल है उसमें हम ऐड करेंगे 2k पाई. सो फाइनली वी गेट 2 रेज टू 1 by 6. 1 by 2 into 1 by 3 means 1 by 6. Cos 2k pi plus pi by 4 and sin 2k pi plus pi by 4 raised to 1 by 3 equal to 2 raised to 1 by 4 6 cos 2k pi प्लस पाई बाय 4 एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4. सो 8k पाई प्लस पाई डिवाइडेड 4 प्लस आई साइन सेम एंगल यहाँ पे मिलेगा 8k पाई प्लस पाई बाय 4 रेज टू 1/3 यूजिंग बाय डी मोवियस थ्योरम. 2 रेज टू 1 by 6 cos 8k पाई प्लस पाई अपॉन 12 प्लस आई साइन 8k पाई प्लस पाई अपॉन 12, क्योंकि जो यहाँ पे 1/3 एंगल है 1/4 से मल्टीप्लाई होगा. सो 4 इंटू 3 मीन्स 1/12 और k इक्वल टू 0, 1 एंड 2. अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का, तो हमने देखा था सिस थीटा लिखते थे. तो सिमिलर यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है z इक्वल टू 2 रेज टू 1 by 6 cos का c, आई का आई, एस ब्रैकेट
8k पाई प्लस पाई अपॉन 12 k इक्वल टू 0 1 एंड 2। अब हम रूट्स फाइंड करने के लिए के डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे पहले रखेंगे k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 0, सो वी गेट z0 फर्स्ट रूट 2^1/6 6 पाई बाई 12 लिख सकते हैं हम। सिमिलर k इक्वल टू 1, so we get z1 equal to 2^1/6 6 9 pi by 12 and 9 pi by 12 it means 3 3 कट तो 3 pi by 4 हो गए। आगे k इक्वल टू 2, सो z2 इक्वल टू 2^1/6 6 17 pi अपॉन 12। सो हमने 3 रूट्स फाइंड कर लिए, z0 z1 एंड z2। यहाँ पे और करके मैंने लिखा है, सेम एग्जाम्पल है लेकिन जो पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है उसका शॉर्ट फॉर्म के लेके हम कर सकते हैं। जैसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की रिप्लेस में हम सिस थीटा लिख सकते हैं, तो मैं वो लिखा, आर की वैल्यू लिखी, थीटा की वैल्यू लिखी, फिर एंगल में थीटा जो है उसमें 2k पाई ऐड किया तो 2k पाई ऐड कर लिया हमने, एलसीएम लिया तो क्या हुआ 8k पाई प्लस पाई अपॉन 4 हो गया, फिर डिमूवियर थ्योरम में अप्लाई किया तो यही मिला। सो फाइनली वी गेट दिस दिस इज अनदर फॉर्म इन द शॉर्ट फॉर्म सिस थीटा के फॉर्म में। तो आप उसी टाइप से भी कर सकते हो या आगे वाले भी मेथड से कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया। ये एग्जांपल आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। स्टेट डी मोवियस थ्योरम, फाइंड रूट ऑफ क्यूब रूट 8i, अदरवाइज 8i रेज टू 1/3 लिख सकते हो आप। आगे एक हम एग्जांपल देखते हैं। अप्लाई डी मोवियस थ्योरम टू सॉल्व द इक्वेशन x⁷7 प्लस आई x⁴ माइनस आई x³ प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन दिया है, उसे सॉल्व करना है। इट मीन्स फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाय डी मोवियस थ्योरम। सो यहाँ पे फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन। सो x⁷7 प्लस आई x⁴ माइनस आई x³ प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले जो दो पार्ट है उसमें से x⁴ कॉमन लेंगे और जो पीछे वाला पार्ट है उसमें 1 की जगह हम क्या लिखेंगे -i²। सो यहाँ पे पहले x⁴ कॉमन लेंगे तो क्या होगा x³ प्लस आई, माइनस आई कॉमन लिया तो x³ प्लस आई हो गया इक्वल टू 0। रिप्लेस 1 एज अ -i²। सो फाइनली कॉमन x³ प्लस आई, सो वी गेट x⁴ माइनस आई सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए, x³ प्लस आई इक्वल टू 0 एंड x⁴ माइनस आई इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पार्ट x³ प्लस आई इक्वल टू 0। सो x³ प्लस आई इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू माइनस आई रेज टू 1/3। आप x³ प्लस आई इक्वल टू 0 तो आप लिख सकते हो x³ इक्वल टू माइनस आई, और क्यूब की पावर हटाने के लिए बोथ साइड क्या करना पड़ेगा रेज टू 1/3 लेना पड़ेगा। सो वी गेट x इक्वल टू माइनस आई रेज टू 1/3। आगे वाले जो हमने एग्जाम्पल दिख रहा है सेम एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद एंगल में 2k पाई ऐड करेंगे हम, और लास्ट में हम डी मोवियस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक में जो डायरेक्ट लिखा है पोलर फॉर्म, x की वैल्यू फाइंड करोगे आप, y की वैल्यू, तो आर एंड थीटा, और उसके बाद आप करोगे तो फाइनली थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 मिलेगा। सो आप इसी तरह से लिख सकते हो सिस 3 पाई बाई 2 रेज टू 1/3, एंगल में 2k पाई ऐड करोगे आप, सो सिस 2k पाई प्लस 3 पाई बाई 2 रेज टू 1/3। अब हम डी मोवियस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। सो x इक्वल टू सिस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। सो 4k पाई प्लस 3 पाई बाई 2, एंगल मल्टीप्लाई होगा 1/3, सो वी गेट सिस 4k प्लस 3 पाई बाई 6। और यहाँ पे k की वैल्यू की 1/3 है, सो k की वैल्यू की 0 1 एंड 2।
So substitute value 0, k equal to, so we get x1, k equal to 1, so we get x2, and k equal to 2, so we get x3. सिमिलर आप फाइंड करोगे x इज टू 4 माइनस आई इक्वल टू 0 का रूट्स. So x is to 4 minus I equal to 0. It means x is to 4 equal to I. So x equal to I raised to 1 by 4. सिमिलर सेम प्रोसीजर से आपको क्या करना है, आर थीटा फाइंड करेंगे और यूजिंग बाय डीम्यू से हम डिफरेंट रूट्स फाइंड करेंगे. के की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल, उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद.